सो गाइस इसमें सेल डबल होती है. सो अभी क्या हो रहा है बच्चों? The G1, S, and G2 stages. सो ये G1 G2 G1 ये क्या है? ये इंटरफेस है. सेल प्रिपेयर हो रही है, सेल डिवाइड नहीं हुई बच्चों, सेल प्रिपेयर हो रही है. तो एस फेज जो रहता है इसमें सेल ना अपना डीएनए का डबलिंग कर रही है. जैसे 2 की 4 बन गए, 4 है तो 8 बन गए, 8 है तो 16 बन गए. ऐसे क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं. आगे Of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. सो गाइस क्या हुआ यहाँ पे? आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल है, और यहाँ पे ये डुप्लीकेट हुए हैं. ये ओरिजिनल, ये उसका डुप्लीकेट है, ओरिजिनल. सो यहाँ पे इस तरह से डुप्लीकेट क्रोमोसोम बन गए हैं. सो 4 तो 8 बन गए. तो सेंट्रियोल एनिमल्स में होते हैं बच्चों, प्लांट में नहीं होते. और सेंट्रियोल से फाइबर्स बनते हैं जो सेल को डुप्लीकेट करने में हेल्प करते हैं. ये सेंट्रोमियर है, मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में पेयर बना लेते हैं. पहले तो पेयर में फॉर्मेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का, सिस्टर क्रोमैटिड में, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स का नहीं, दूसरे वाले the क्रोमोसोम. second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. यू नो दैट मैंने हम लोगों ने क्रोमोसोम में पढ़ा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. ये देख रहे हो, सेंट्रियोल को ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. ये है स्पिंडल फाइबर्स. कहाँ से निकले बच्चों? ये इलास्टिक फाइबर्स है. ये निकले दोनों तरफ के सेंट्रियोल से. सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है गाइस. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. आपको पता है अलग अलग फेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. सो बच्चों मियोसिस में प्रोफेज बड़ा लंबा चलता है. और प्रोफेज 1 जो रहता है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है. मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है. मियोसिस 1 अलग होता है, उसमें प्रोफेज बड़ा लंबा चलता है. और इस प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है. प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बच्चों. और सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं. आगे Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the 2 daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is 2 haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2,
The sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either haploid daughter cells. So guys, यहाँ पे जो haploid daughter cell बने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं guys. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे ये सेट जो है क्रोमोसोम का पेरेंट्स की तरह है, ये भी पेरेंट्स की तरह है, ये ब्लू वाला टोटल पेरेंट्स की तरह है, पर आप देखना 1 2 यहाँ पे हाफ द क्रोमोसोम दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिन्स क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम एक्सचेंज हुए बच्चों. तो ये प्रोसेस कहाँ हुई? ये प्रोसेस हुई बच्चों मियोसिस में. मियोसिस में प्रोफेज 1 जो रहता है मियोसिस का, वो लंबा चलता है और उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसी कारण बच्चों गमीट्स बनने की प्रोसेस में मियोसिस प्रोसेस होता है. मियोसिस में प्रोफेज 1 होता है और इसी प्रोसेस में बच्चों एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं. सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब एक क्रोमोसोम का जब डुप्लीकेट होके सेम वैसा ही क्रोमोसोम बनेगा, ये तो 2 रहेगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड रहेंगी, ठीक है. बट अलग अलग क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग कलरेशन यूज किए हैं, ब्लू एंड पिंक. सो ब्लू एंड पिंक वाले जो है those are non sister chromatid. blue जो है वो है sister chromatid. so हमेशा non sister chromatid जो रहते हैं उसके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. इससे ही गमीट्स में वेरिएशंस आते हैं गाइस, और इसके ही कारण जो है बच्चों हम लोग एग्जैक्ट कॉपी नहीं है हमारे पेरेंट्स की. गाइस, डू यू अंडरस्टैंड अप टू दिस गाइस? यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? So this process is known as crossing over. वैसे तो crossing over प्रोसेस में कौन सी फेजेस होती है तो मैं समझा रही हूँ. क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस, मैं प्रो फेज को फिर से दोहरा रही हूँ, फिर से पढ़ा देती हूँ. क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस, पहले बेसिक आइडिया समझ में आ गया. क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स बाय interchanging and exchanging of corresponding segments between non-sister chromatids of the homologous chromosome. It occurs during पैचेटिंग फेज ऑफ प्रोफेज के भी और सारे फेजेस रहते हैं, मैं बता रही हूँ. क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? पैचेटिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस. द टर्म क्रॉसिंग ओवर पहली बार कॉइन की मॉर्गन ने. मैकेनिज्म और इसकी सीक्वेंशियल स्टेप्स कैसे? पहले होता है सिनॉप्सिस, फिर बनता है टेट्राड फॉर्मेशन, फिर होता है क्रॉसिंग ओवर, फिर होता है टर्मिनलाइजेशन. ये सभी मियोसिस की स्टेप वाइज प्रोसेस है. पहला कौन सा? सिनेप्सिस, बाद में टेट्राड, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनलाइजेशन. मैं समझा रही हूँ पूरी प्रोसेस को डिटेल में. You already studied क्या है, but I will explain you this thing because हमने तो पढ़ा ही नहीं है. So guys, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है. जो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मैं क्रॉसिंग ओवर को पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी, ये सभी सिनैप्सिस समझाऊंगी, टेट्राड फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, आज के लिए इतना ही. फिर कल नेक्स्ट क्लास में मॉर्गन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और कुछ डिसऑर्डर्स है हमें लेनी है, कुछ डिसऑर्डर्स है, बहुत सारी. इम्पोर्टेंट यूनिट है, कंसेप्ट बेस्ड यूनिट है, समझना बहुत जरूरी है. बहुत लंबा यूनिट है, इसको समझेंगे नहीं तो ये यूनिट समझता ही नहीं है, ठीक है. आर यू क्लियर गाइस? अभी इंग्लिश की क्लास है तुम लोगों की. ओके गाइस, चलो फिर, थैंक यू. Thank you.